your due education. I am Bilkis of your maths teacher. Today we will solve question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 9.1. So at first question number 5, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Suppose a kite is flying at a height 60 meter. This height 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Suppose this string जो kite से attached है, वो tied to at a point on the ground, and the inclination of the string with the ground. The inclination of the string with the ground. String का ground के साथ जो inclination है वो है 60 degree. Find the length of the string. Find the length of this string. Suppose ABC. So you have to find the length of AC. And assuming that there is no slacks in the string. मान लीजिए डोरी में कोई ढील नहीं है. So your angle B is 90. ABC form a right angle triangle. So इस right angle triangle में आपको perpendicular given है and hypotenuse आपको find out करना है. So perpendicular and hypotenuse में क्या relation है? SPH rule. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So in triangle ABC, sin 60 is equal to AB upon AC, perpendicular upon hypotenuse. This implies sin 60 means root 3 upon 2 is equal to AB. आपको फाइंड आउट करना है AC. AB आपको गिवन है 60 and AC आपको फाइंड आउट करना है. This implies AC is equal to 120 upon root 3. root 3 कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए. सो 120 root 3 into root 3. That means 40 root 3 meter. That's the answer. Now next question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So question number 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Suppose this is a 30 meter tall building. 30 meter. And a boy standing here. And height of this boy 1.5 meter. The angle of elevation from his eyes to the top of the building. Eyes में से इसमें से यहाँ से ये जो एंगल है elevation of angle from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 as he works towards the building. बिल्डिंग की तरफ जब जाएगा ये एंगल 30 से इंक्रीज होके मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये एंगल 60 हो गया. 30 से इंक्रीज होके 60 हो गया. फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बिल्डिंग की तरफ ये कितना दूरी उस फाइंड द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा ये आपको फाइंड आउट करना है. सपोज A, B, C, D, E and F. So you have to find the length of EF. ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे राइट एंगल
दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ए बी एफ एंड एक ए बी ई, लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है ई एफ, ई एफ से रिलेटेड जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दैट मीन्स ए एफ ई, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इस पे आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो यूज नहीं कर पाओगे। सो आपको जो करना है ये जो ट्राइंगल ए बी एफ एंड ए बी ई के हेल्प से करना है। सो एट फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी एफ, अच्छा उससे भी पहले आप ए बी का जो हाइट है वो फाइंड आउट कर लीजिए कि ये जो 30 मीटर ये हाइट ए सी का है, लेकिन यहां से एंगल बना हुआ है, यहां से इसके आईज से। सो ये जो ए बी का डिस्टेंस है, हाइट ऑफ ए बी, it can be observed that height of AB is equal to AC minus ED. AC minus ED, that means AC 30 and ED 1.5, ED that means BC, or you can write BC. So 30 minus 1.5, that means 28.5 meter. Now in triangle ABF, ये ABF स्मॉल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, आपको बेस फाइंड आउट करना है। सो परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन है, TPB tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर AB एंड बेस BF. This implies BF is equal to AB 28.5 and tan 60 root 3. So BF is equal to 28.5 by root 3. Now in triangle ABF, in triangle ABE, big triangle, here also tan 30 is equal to perpendicular upon base, that means AB upon base BE. So this implies BE is equal to AB upon tan 30. This implies AB 28.5 and tan 30 1 upon root 3. That means 28.5 root 3 meter. So BE is equal to 28.5 root 3 and BF. So BE में से BF माइनस करोगे तो आपको रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस EF फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा. So that means length of EF is equal to BE, total distance BE minus BF. So here BE is equal to 28.5 root 3 minus BF 28.5 upon root 3. Now calculate it. Root 3 LCM. Root 3, 3, that means 28.5 into 3 minus 28.5. 28.5 into 3, that means 85.5. 85.5 minus 28.5 root 3. 85.5 minus 28.5, 57. 57 upon root 3. Root 3 cancel out करने के लिए root 3 से multiply करो. So that means 57 root 3 upon 3. 19 root 3 meter. So 19 root 3, that's the
आंसर 19√3। सो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो टुवर्ड्स, जो वहां पे क्या था, वो एक बिल्डिंग था, उसके तरफ उसने कितनी दूरी, उसके तरफ, उसके टुवर्ड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया 19√3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission to a tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 65 respectively. एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप में फिक्स्ड है। They said that एक ट्रांसमिशन टावर जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप में फिक्स्ड है। सपोज ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन है, ये जो हाइट है ये 20 मीटर है। एंड और क्या गिवन है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ दिस टावर आर, बॉटम एंड द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से एंड टॉप से ये है 45 एंड ये है 60 रिस्पेक्टिवली, 45 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है। सपोज ए, बी, सी एंड डी। सो आपको ए बी हाइट फाइंड आउट करना है। सो एट फर्स्ट इन ट्रायंगल बी सी डी, सो एट फर्स्ट इन ट्रायंगल बी सी डी, स्मॉल ट्रायंगल में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स TPB। सो tan 45, जो स्मॉल एंगल है ये 45 है, tan 45, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस TPB। सो परपेंडिकुलर BC एंड बेस DC, tan 45 1, that means BC is equal to DC, और BC given है 20, this implies DC is equal to 20 मीटर। सो DC आपको बेस मिल गया DC। नाउ इन ट्रायंगल ACD, ACD में सेम TPB, tan 60 इज इक्वल टू, आपका परपेंडिकुलर है AC एंड बेस है DC, सो दैट मीन्स AC इज इक्वल टू DC इंटू tan 60, DC का वैल्यू 20 एंड tan 60 √3, दैट मीन्स 20√3। तो आपको AC मिल गया, आपको BC पता है, सो आपको फाइंड आउट करना है AB। सो AB मीन्स AC माइनस BC। सो हाइट ऑफ AB is equal to AC minus BC। AC 20√3 and BC already given है 20, that means 20 कॉमन ले लो, √3 minus 1, 20 into √3 minus 1 meter, that's the answer। Now next question, question number 8। A statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal। They had told us a statue जो 1.6 मीटर हाइट है, वो एक पेडिस्टल के ऊपर स्टैंड है। यहाँ इसके ऊपर एक 1.6 मीटर हाइट के स्टैचू है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से
टॉप ऑफ द स्टैचू, ये जो एंगल है टॉप ऑफ द स्टैचू, ये जो एंगल है ये 60 है, और इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल ये जो एंगल है ये 45 है, और ये जो एंगल है ये 60 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये जो हाइट है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज ए बी सी एंड डी, सो आपको बीसी हाइट फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, स्मॉल ट्रायंगल में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही काम करना है। सो हम tan के फॉर्मूला लेंगे, TPB, tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन DC, BC अपॉन DC, tan 45 1, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू DC। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल सॉरी BCD नहीं ACD, जो भी ट्रायंगल है ACD में सिमिलरली tan का फॉर्मूला tan 60 इज इक्वल टू AC, परपेंडिकुलर AC एंड हाइट सॉरी बेस DC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 60 √3 इज इक्वल टू AC अपॉन DC के जगह आप क्या लिख सकते हो, BC, फ्रॉम इक्वेशन 1। So this implies AC is equal to BC √3, AC is equal to BC √3। So आपको फाइंड आउट करना है BC, आपको ये हाइट चाहिए, हाइट ऑफ पेडिस्टल। सो हाइट ऑफ pedestal is equal to, that means BC is equal to, that means BC is equal to AC minus AB, AC minus AB। So this implies BC, AC के जगह आप पुट कर सकते हो BC √3 from equation 2, from equation 2, and AB given है 1.6, AB given है 1.6। So this implies BC √3 minus BC is equal to 1.6, BC कॉमन ले लो, BC √3 minus 1 is equal to 1.6। So this implies BC is equal to 1.6 upon √3 minus 1। अब नीचे √3 कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में a माइनस बी इस फॉर्म में दे दिया, जहां पे a √3 है b 1 है। सो आपको a प्लस b से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो ये करने से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो 1.6 √3 into √3 plus 1, so square, that means √3 square minus 1 square। So 1.6 √3 plus 1, 3 √3 square 3 minus 1, that means 2, that means 0.8। So 0.8 into √3 plus 1 meter, 0.8 into √3 plus 1, that's the answer। Thank you।